ठीक है ना। अब बीच बीच में ये कट जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे। चलिए ठीक है, लेमन मिक्सचर में क्या है, अब बताओ मिक्सचर क्या है। A mixture can be in a solid, liquid, or gaseous form. Some example of the mixture of each of these form are given in the following. In the in the in the following, a mixture can be in a solid, liquid, or the gaseous form. Some example of mixture of each of these form are given in the following table. Mixture, two or ten, two or more substances are mixed in them in any ratio. Then we get the mixture. ठीक है, मिक्सचर इन डिफरेंट फॉर्म्स, सॉलिड है, सॉलिड के मिक्सचर का नाम बताओ, कंपोनेंट का नाम बता दीजिए। हरी आप कौन सा है, विच आर देम? हाँ, सॉइल, एलॉयस, हाँ, वेरी गुड। लिक्विड में क्या क्या रहता है, विच थिंग्स आर प्रेजेंट इन द, हाँ, सॉल्ट सॉल्यूशन, एक्सपेंट, सी वाटर एक्सेट्रा। गैसेस, गैसेस में हाँ, एयर, सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी, these are the examples. These are the examples of the mixture. Now, अब हम लोग पढ़ेंगे types of mixture. Mixture are the types. ये दो तरह का mixture पढ़ते हैं. Can you say the example of the what are them? How many types of mixture? Can you say the how many types? Which are them? कौन कौन सा? Yes, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Can you give example of the homogeneous mixture? होमोजीनियस मिक्सचर का नाम बताओ, होमोजीनियस मिक्सचर का नाम बताओ, व्हाट आर द होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर का नाम बताओ। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या क्या हुआ, होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्ट शुगर मिला दिया तो, सॉल्ट वाटर मिला दिया तो, दोनों को अगर मिला देंगे तो अगर हम लोग मान लो शरबत बनाते हैं तो उसमें क्या किया, वाटर लिए उसमें शुगर डाल दिए, सॉल्यूशन बन गया, तो क्या अपर लेवल और लोअर लेवल का टेस्ट एक जैसा होता है कि अलग अलग होता है? अगर शरबत बांधे तो अलग अलग टेस्ट होता है। अरे एक गिलास, अरे एक गिलास अगर हम लोग वाटर लिया, उसमें अगर हम लोग 2-3 चम्मच चीनी डाल दिए और शरबत बना दिए, तो शरबत का टेस्ट ऊपर वाला और नीचे वाला लेवल लेवल का एक जैसा रहेगा या अलग होगा? अलग अलग रहता है। अगर शरबत का टेस्ट लेता है तो 2 घूंट अलग टेस्ट आता है, आधी से घूंट अलग टेस्ट रहता है। कैसा रहता है, एक ही जैसा रहता है। The solution in which the mixture in which the composition throughout same एक ही तरह का रहेगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग, होमोजेनियस मिक्सचर। चलिए, अब दूसरा हेटेरोजेनियस मिक्सचर। व्हाट इज कॉल्ड द हेटेरोजेनियस मिक्सचर? ठीक है, आप देखो पेज नंबर 52, you all see the page number 52. A homogeneous mixture is that which has the same composition throughout. ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन जो है वो थ्रोट सेम है, ठीक है ना, थ्रोट सेम, that is its components are uniformly distributed, hence its different parts cannot be distinguished from each other. A solution of the salt and sugar in water, soft drinks, alloys are some example of the homogeneous mixture. बताओ होमोजेनियस मिक्सचर कैसा रहेगा, अगर कोई भी मिक्सचर है जिसमें उसका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम, a mixture in which the composition is throughout same, that is called the homogeneous mixture. ठीक है, heterogeneous mixture।
heterogeneous mixture, heterogeneous mixture. Now heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture is that which does not have the same component, same composition. And that is its components are not uniformly distributed. Hence, its different parts can be distinguished from each other. The mixture of sand in the water, iron nails in the sulfur powder, pebbles in the rice are some example of heterogeneous mixture. ये सब क्या है heterogeneous mixture का example है ना. These are the example. हाँ, these are the example of heterogeneous mixture. ठीक है. Now heterogeneous mixture किसको कहेंगे? A mixture in which the composition throughout not same. सभी जगह उसका कंपोजिशन जो है सेम नहीं रहेगा, तो वैसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? वी से देम हेटेरोजेनियस मिक्सचर. ठीक है. एनी प्रॉब्लम हियर? अब हम देखते हैं. डू यू नो some dishonest person mix harmful and cheap components with pure substances to earn more profit. For example, they mix white stone in rice or dried papaya seeds in the black pepper. This is called the adulteration, which is something that should not be done at all. It is always available to, to buy good quality food stuff from a reliable store. बहुत सारे शॉपकीपर लोग क्या करता है, मान लो कि हम लोग जाते हैं कुछ ऐसा मटेरियल रहता है जो सिमिलरिटी होता है उसके पास मटेरियल से, उसको क्या करेगा वो मिक्स कर दिया. अगर राइस वगैरह है तो उसी कलर का कुछ स्टोन डस्ट से उसको मिक्स कर दिया है, तो ये फिर हम लोग का क्या बनता है मिक्सचर, ऐसा वो करता है. तो दैट इज कॉल्ड एडल्ट्रेशन. खरीदते समय हम लोग को सामान खरीदते समय ये चेक कर लेना चाहिए कि ये सब जो है ऐसा कुछ नहीं हो, ब्रांडेड जगह से खरीदो. नाउ सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर. अब डिफरेंट मिक्सचर है तो उसको सेपरेट करने का प्रोसेस भी हमारे पास अलग अलग होगा, है ना. प्रोसेस भी हमारा अलग अलग होगा. ऐसा तो नहीं है कि हर काम एक ही मेथड से हो जाए. डिफरेंट में हमको बहुत सारा हमारे जनरल लाइफ में बहुत सारा हमारे जनरल यूज में बहुत सारे मिक्सचर टाइप का रहता है, उसको हमको सेपरेट करना रहता है. तो देखिए अब आप the component of a mixture can be separated by simple physical method. This method for separation of mixture are based on the differences in the properties of their component. The component of mixture क्या है? Can be separated by a simple physical method. इसमें कोई केमिकल रिएक्शन करवाने की जरूरत नहीं पड़ी. सिंपल प्रोसेस से फिजिकल प्रोसेस में लोगों ने इसको सेपरेट कर लिया, है ना. तो दैट इज कॉल्ड द सिंपल फिजिकल मेथड. There are many different methods by which components of a mixture can be separated. For understanding from for understanding them better, let us divide the mixture into the three categories. अब मिक्सचर कितने तरह का है? 3 कैटेगरीज का है. फॉर एग्जाम्पल, हाँ, मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद द सॉलिड्स, मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद लिक्विड एंड मिक्सचर ऑफ लिक्विड विद लिक्विड. कैसा कैसा मिल सकता है का मिक्सचर? सॉलिड में सॉलिड मिक्स हो, सॉलिड में लिक्विड मिक्स हो, या फिर लिक्विड लिक्विड विद लिक्विड हो, है ना. दूध में पानी डाल दिया तो वो क्या हो गया? लिक्विड तो लिक्विड हो गया. अगर सॉलिड विद द लिक्विड, लिक्विड में अगर हम लोग चीनी डाल देते हैं तो वो हो गया सॉलिड विद लिक्विड. सॉलिड तो बहुत सारे एग्जाम्पल है ही है. नाउ लेट अस नाउ डिस्कस देम वन बाय वन इन डिटेल्स. अब है आपका मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड्स विद द सॉलिड. हैंड पिकिंग. इसमें फर्स्ट प्रोसेस क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसेस? दैट इज द हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग से क्या घर में देखते हो कुछ निकालते हुए? गिव मी एग्जांपल.
घर में मम्मी लोग को देखते होंगे कुछ हैंड पिकिंग करके कुछ चीज़ को सेपरेट करती हैं। अगर राइस है तो राइस में से पेपर स्टोन्स जो हम लोग उसको निकालते हैं, दाल है तो दाल में से निकालते हैं, होता है ना ऐसा। तो दैट प्रोसेस, हाँ बोलो, दैट प्रोसेस कॉल्ड दी हैंड पिकिंग। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हैंड पिकिंग कहते हैं। हैंड पिकिंग, हाँ। द components of a solid mixture can sometimes be separated by picking them with hands. This method is used when the components of the mixture are of the different color, shape or size and the quantity of the mixture is small. ऐसा हम लोग तब करते हैं जबकि वो डिफरेंट कलर का हो, है ना। जिस चीज़ को सेपरेट करना है उसकी क्वांटिटी कम हो, वो डिफरेंट कलर का हो, डिफरेंट साइज का हो, देन कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ द हैंड पिकिंग। ठीक है। नाउ example of separating the component of a mixture by hand picking are separating pebbles from rice or dal और separating grasses from mint leaves। अब धनिया पत्ता खरीदते हैं, मिंट लीफ खरीदते हैं, उसमें से घास का पत्ता को चुन के निकालते हैं, तो और तो कोई प्रोसेस में यूज नहीं कर सकते हैं। तो दीज आर द प्रोसेसेस। सेकेंड वन इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग देखा हम लोग स्कूल के बगल में, कभी कभी तुम लोग देखा होगा पीछे में थ्रेशर से कटिंग होता है। थ्रेशिंग करके क्या होता है, उसमें से वीट 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 में से वो डस्ट पार्टिकल को निकालता है, रॉ मटेरियल को हटा देता है। So this method is generally used by the farmers to separate the grains from the stalk after harvesting। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन कर दो। The method is generally used by the farmers to separate the grains from the stalk after the harvesting। ठीक है, जब वो कटाई हो गया हो, गेहूँ वगैरह अभी देखो कटाई हो गया है, अब उसके बाद क्या होगा, वो मशीन में जाएगा और मशीन में हार्वेस्टिंग हो गया। अब उसका क्या करेगा, मशीन में डालेगा तो उसका वो थ्रेसिंग हो जाएगा। मतलब जितने भी हैवियर मटेरियल है वहीं से गिरेगा और वो लाइटर पार्टिकल से अलग हो जाएगा। The dried stalk are beaten or threshed to separate the grains in the large farms। Threshing is done by using the machine called the threshers। जो मशीन से हम उसको थ्रेसिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड द थ्रेशर्स। ठीक है। नाउ अब है विनोइंग। अब पहले डू यू नो देख लो। द प्रोसेस ऑफ कटिंग और एंड गैदरिंग आ राइपेंड क्रॉप इज कॉल्ड द हार्वेस्टिंग। इसको क्या कहेंगे हम लोग, हार्वेस्टिंग कहते हैं। जितना कटिंग है, गैदरिंग है, जितना भी पहले उसको पूरा अच्छे से हम लोग क्रॉप को लगाए, उसको कटिंग किए, गैदरिंग किए, तो दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड द हार्वेस्टिंग। A farm machine called a combine is used for both harvesting and threshing। This machine, what is the name of the machine? क्या है नाम अब इसका? कंबाइन, जो कि क्या काम करता है, हार्वेस्टिंग का भी काम करेगा और थ्रेशिंग का भी वो काम कर रहा है। चलिए अब है सेकेंड वन है विनोइंग। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द लाइटर husk from the heavier grains like wheat। In this method, the mixture is allowed to fall from a height. The lighter component, like the husk, get blown away to the distance while the heavier component or the grains fall down closer। These two parts thus get separated out into the two separate heaps। क्या होता है, हैवी पार्टिकल को जो देख रिएक्शन ऐसे से करता है तो क्या होता है, जो हैवी पार्टिकल है वो जमीन के ठीक उसके सामने गिरता है, और जो लाइटर पार्टिकल है उसका वो थोड़ा हवा से दूर गिरता है। इन दिस वे द ग्रेन पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्क। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द विनोइंग। ठीक है। अब इसे ज़्यादा मत पढ़ो, आज बहुत पढ़ लिया। अब जो पढ़ा है उसी से पहले हम पूछ लेते हैं। ठीक है। व्हाट इज द मिक्सचर, बताइए। व्हाट इज कॉल्ड मिक्सचर, मिक्सचर बताओ। व्हाट इज कॉल्ड मिक्सचर? हाँ, when the two or more substances mix in any proportion, किसी भी रेशियो को मिला दिए, then no chemical reaction happens, it's called the mixture। ठीक है। what is pure substance?
What do you mean by the term pure substance? What do you mean by the term pure substance? Pure substance किसको कहेंगे? You know, what is called the pure?